हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.2 ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਸਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ A1 by A2 ਦੀ B1 by B2 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾਗਾ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ A1 by A2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 by B2। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 3.2 ਦਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ A1 by A2, ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥਰਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ A1 by A2 ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ C1 by C2 ਹੈ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ A1 by A2 not equal to B1 by B2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A1 by A2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 by B2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 by C2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A1 by A2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 by B2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 by C2, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ A1 by A2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 by B2 ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਪੇਅਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ,
ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਸਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 and next है 2x - 3y = 7। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ 3x + 2y ਤੇ 5 इधर आके की हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा = 0। तो फस्ट तो मैं की है इक्वेशन नंबर थर्ड बना लिया। ठीक है। तो उस तो बाद फ्रॉम सैकेंड इक्वेशन कुछ नहीं कर रहा मैं, जस्ट उन्होंने एक प्रॉपर वे दे विच लिख रहा गा जिस वे दे विच आपां नूं वो चाहिदियां ने। -7 = 0 देखो आपां नूं इसे फॉर्म दे विच चाहिदियां ने। तो हुण स्टूडेंट्स आपां देखो अपने कोल की है, मैं लास्ट वीडियो गल की सी भी ये अपने को की हो गया? A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। आप हुण की है इन्हां दा कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो जी मेरे को आउंदा गा 3/2। ठीक है। मतलब कि 3A1 हो गया ना, तो 2A2 हो गया। तो हुण = दा साइन, उस तो बाद 2 देखो ये B1 हो गया एंड B2 ये -3 हो गया। हाँ स्टूडेंट्स तुसीं मैं दस सकते हो, देखो ये बिल्कुल एक दूसरे उपर कट्टे तो जाते नहीं गए क्योंकि इन्होंने विच कुछ भी कोई भी इदां दा टेबल है साझा नहीं हैगा। ठीक है। जिसके उपर इन्हूं कट कर सकती होगी। तो इस करके दोनों को प्राइम नंबर ने, ये भी को प्राइम है, तो इस करके कट नहीं होंगे। तो की ये इक्वल ने? नो, इक्वल नहीं है ये। ठीक है। तो अपने को जिहड़ा किहड़ा केस बनता है? देखो इत्थे अपने को बनता है तो वी हैव A1 by A2 = B1 by B2 is not equal to। ठीक है। तो यह की है? इक्वल नहीं है। सो the pair of linear equation is consistent। तो देखो जी आप ये भी लिखना है। सो here one unique solution possible and the pair of linear equation is consistent। तो जे अपन पंजाबी लेके मनीए तो अपने को मैं कहूँगा कि साढ़े को A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हैगा गा। इस करके इसका एक विलक्षण हल संभव है। तो जिहड़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो वो की है? कंसिस्टेंट है। ओके। तो इस ढंग के नाल आपां जिहड़े सारे सवाल आपां करने हैं। तो हुण आपां अगले सवाल वल वधदे हां। हाँ जी, जिहड़ा नैक्सट सम है वो अपना की कहंदा गा? देखो सैकेंड सम है जिहड़ा, थर्ड दा सैकेंड सम है जिहड़ा,
साडा सैकेंड सम स्टूडेंट्स की कहंदा गा 2x - 3y = 8 2x - 3y = 8 and 4x - 6y 4x - 6y = 9 तो बन गया जी अपने को। ठीक है, तो हुण की है आपां सेम उस ढंग दे नाल आपां की कहांगे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं कहांगा फ्रॉम इक्वेशन 1 भाव के पहली इक्वेशन तो मेरे को बन जाएगा 2x - 3y माइनस दे 8 = 0 हुण फिर आपां कहांगे फ्रॉम इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 तो मेरे को हो जाएगा 4x - 6y तो 9 इधर आके मैं की हो जाएगा माइनस का हो जाएगा = 0 तो हुण अपने को दोहें जी इक्वेशनस ने आपां प्रॉपर फॉर्म दे ले आए हैं अपने को इक्वेशन 3 एंड 4 है जी वो बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स हुण आपां की करना इसनूं आपां देखो पहले A1 ले लो A1 अपने को है 2 है फिर A2 ले लो कितना गा 4 है फिर आपां V1 ले लो माइनस दे 3 है फिर आपां की V2 ले लो कितना गा माइनस का 6 तो ध्यान लैनिया अपन वैल्यूज़ ने तो हम देखो इतने मेरे अकॉर्डिंग तो यह बिल्कुल इक्वल होने जा रही ने देखो इतने की अपने को माइनस ना माइनस कट गई 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो हुण ये देखो 1/2 = 1/2 है तो हुण देखो ये जो दोनों इक्वल ने तो अपन तीसरी नूं कंपेयर करांगे तो तीसरी मेरे को की आ गई माइनस दे 8 एंड माइनस दे 9 ओके माइनस नाल माइनस कट गई है बट फिर भी ये इक्वल नहीं हुई तो मेरे को की बन रहा है स्टूडेंट्स देखो मेरे को बन रहा है जी 1/2 = 1/2 = 8/9 कि इक्वल है नो नहीं इक्वल हैगी तो देखो हुण अपने को किहड़ा केस बन रहा है थर्ड केस बन रहा है ना तो इत्थे अपने को सो वी हैव A1 by A2 = B1 by B2 not equal to C1 by C2 तो एक केस बन गया ना अपने को तो हम एक केस बन गया तो आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिखांगे सो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल मतलब कि कोई भी हल संभव नहीं and the pair of linear equation is देखो की होएगा इनकंसिस्टेंट होएगा याद है ना थोड़े वो केस सारे ठीक है तो ये की हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस ढंग के नाल अपना जो सैकेंड सम है आप उसको सॉल्व कर लिया तो हुण आपां की है जो थर्ड सम है इस ढंग नाल आपां उसनूं भी सॉल्व करांगे बहुत सौखा स्टूडेंट्स तुसीं नाल बने रहो बस ठीक है तो तुसीं आपां बड़े आसानी नाल कर लेंगे तो पहले मैं थोड़ी ये जी स्टेटमेंट इसनूं उतार लवां हाँ जी जो थर्ड स्टेटमेंट है सॉरी थर्ड सम है वो की कहंदा है 3/2x + 5/3y = 7 9x - 10y = 14 तो फिर की अपने को इक्वेशन नंबर 1 हो गया इक्वेशन नंबर 2 तो मैं कहांगा फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे को की बन जाएगा 3/2 सॉरी 3/2x + 5/3y बिल्कुल वही कम करना आप 7 इधर आके की हो जाएगा माइनस का हो जाएगा = 0 हाँ जी स्टूडेंट्स ये अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड बन चुकी है ठीक है तो हुण अपने को की आ जाएगा नीचे फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 दे विच अपने को की आ गया 9x सेम एज इट इज 10y ते अपने को माइनस दे 14 = 0 इक्वेशन नंबर 4 तो हम अपने को इक्वेशंस बन चुकी ने तो फिर आप हुण की इन्हां दे A1 एंड A2 V1 by V2 इन्होंने कंपेयर करांगे ठीक है तो देखो मेरे को की आ गया A1 स्टूडेंट्स A1 की बन गया मेरे को A1 आ गया मेरे को 3/2 देखो इससे नीचे की आएगा 9 A2
उस तो बाद देखो इस दे सामने पावांगे आपां, बिल्कुल इस दे सामने नहीं तुसीं पाउणा क्योंकि ये उपरला जिहड़ा फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, ये अपने आप दे विच एक नंबर है। 3/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड कर रहे हैं 9 ਦੇ ਉੱਪਰ। तो हुण अपने कोल नैक्सट आ जाएगा 5/3 b1 माइनस दे 10। फिर अपने कोल देखो पहले तो आप इसनूं देखते हैं भी की ये कट जाएगा, तो आप चैक कर लेने। हाँ जी, तो अपने कोल की आ गया देखो ये 3/2 रह गया, बिल्कुल जिदा आप छोटी क्लास किया गा। ये 9/1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9। उस बाद साइन इक्वल का ऐदा ही 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10। ठीक है जी, तो आप इसनूं सॉल्व किया जस्ट, ठीक है। 3/2 ਨੂੰ मैं ऊपर रख लिया, 9 ਸੀਗਾ इसनूं 1/9 करके मल्टीप्लाई करता, 5/3 ਨੂੰ ऊपर रख लिया, ठीक है, एंड 10/1 ਨੂੰ 1/10 करता, 1/-10 सॉरी। तो हुण अपने को आ गया 3 3 9 5 2 10। तो स्टूडेंट्स इसनूं आपां सॉल्व करके अपने को की बनता है, देखो ये बनता 1/2 देखो 2 3 6 बन गया ना। इधर अपने को की आ जाएगा देखो 1 ऊपर है, जस्ट 1 है, 3 2 -6, ताकि ये इक्वल है, ठीक है। तो यह बिल्कुल इक्वल नहीं है क्योंकि नीचे माइनस आ रहा है, सो आप कहांगे इक्वल नहीं है। तो अपने को किहड़ा केस बनेगा फिर ये, तो आप कहांगे वी हैव a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इतने मैं शॉर्ट लिख देना गा, ठीक है, तुसीं शॉर्ट नहीं लिखना। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज की होएगा फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, समझ आ रहे हैं। तो हम आप अगला सम करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हम अपना फोर्थ सम है, फोर्थ सम की कहना है देखो 5x - 3y = 11 - 10x + 6y - 22। तो इतनी इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है। देखो ये जी इक्वेशन है ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, भी मतलब कि चेंज करनी है, इदा भी इसनूं सी मान सकते हो, बट मैं इतने तां करवा रहा गा क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ C1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ C2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 5x - 3y - 11 = 0। तो ये मेरे को इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो उस बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 तो मेरे को की बन गया -10x + 6y + 22 माइनस सी ना प्लस दे हो गया = 0। इक्वेशन 4 हम अपने को इक्वेशन 3 और 4 ही मेन होनी है, ठीक है। तो आप कंपेयर करते हैं। पहले मेरे को A1 5 है, ठीक है। तो हम तो रैंडमली उठा लूँगे इन्हों -10 तो इक्वल टू -3 + 6। तो 5 बन जा 5 5 2 10 तो इधर आ जाएगा 3 बन जा 3 3 2 6। तो ये अपने को आ गया 1/2 जिदा कि 1/2 आ गया 1/2। तो अपने को जोड़ा की है थर्ड देखो हम देखो 1/2 माइनस का दोनों इक्वल आ गए ने। तो थर्ड देखो थर्ड आ रहा अपने को -11/22। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 11 बन जा 11 11 2 22। तो ये अपने को आ रहे हैं देखो भी सारे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। -1/2 आ रहा है, ठीक है। अगला आ रहा है फिर -1/2
ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1/2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹ, ਵੀ ਹੈਵ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੂੰਗਾ ਵੀ ਹੈਵ infinite possible solutions, ठीक है, मतलब कि साढ़े को बहुत सारे अनेक हल संभव नहीं। तो नैक्सट मैं लिखूँगा, देखो शॉर्ट च लिख रहा तुम उदा ही लिखाओगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो स्टूडेंट्स इत्थे की होएगा, इत्थे भी की होएगा, कंसिस्टेंट ही होएगा। ओके, याद है ना सारे थोड़े वो जो आप केस किए थे पहले। तो हुण अपने कोल की है फिफ्थ सम। हाँ जी, मैं रकम उतार लिया, ठीक है। तो मेरे को आ गया है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ओके, तो हुण आप इसनूं देखते हैं भी आप देखो बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ इक्वल टू 0 मतलब कि इक्वेशन बना के कीता सीगा, इसनूं ਆਪਾਂ बिना इक्वेशन तो भी कर लैंदे हैं, ठीक है। एक प्रयोग करना चाहिए हैगा, वैसे तुहानूं समझ आ गया, वैसे गलती कोई नहीं होएगी, ये भी ठीक होएगा तुहाडा। तो आप बिना इसनूं चेंज कीते इक्वल टू 0 उदां करांगे। तो देखो इत्थे मेरे को की आ गया, a1 कितना आ गया 4/3 आ गया, एंड फिर आप लंबी लाइन लाने नीचे /2 करते हैं। इसमें 4/3 एक पूरा नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, तो उसके इक्वल आप किसनों लिखांगे 2/3 नूं। देखो ये अपने को v1 हो गया ना, a b2 हो गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो हम आप देखते हैं पहले कंपेयर करके, तो अपने को ये आ जाएगा, देखो जी आप इसनूं थोड़ा सॉल्व करते हैं पहला। 4/3 मल्टीप्लाई 2/1 है, इसनूं आप 1/2 कर सकते हैं, इक्वल टू 2/3। देखो आउंदा कि नहीं, 2 2 ज़ा 4, तो बिल्कुल जी ये 2/3 इक्वल आ गया। तो फिर हुण आपां की है जिहड़ा थर्ड है आपां उसनूं भी लिख लांगे, ठीक है। थर्ड अपने कोल की है 8/12, 8/12। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स अपने कोल की है इत्थे जिहड़े तिन्नां दी जिहड़ी रेशियो है वो 2/3 2/3 2/3 आ रही है। 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तो हुण अपने कोल जदों ये रेशियो तिन्नां दी इक्वल आ गया, तो आपां कहांगे वी हैव a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस ढंग नाल अपने कोल एक केस बन गया। तो हुण अपने कोल की है इस दे सॉल्यूशंस की आपां गल करिए, तो आपां कहांगे इनफिनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, मतलब कि अनेकां हल ने, ठीक है। तो जे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की गल करिए, वो की हो गया फिर इत्थे अपने कोले कंसिस्टेंट हो गया। ओके, इस ढंग नाल आपां जिहड़ा ये सम है आपां इहनूं कर सकते हैं। तो आपां जिहड़े 5 दे 5 पार्ट सीगे उहनूं आपां सॉल्व कर चुके हैं, तो आस है तुहानूं समझ भी आया होएगा। तो हुण आपां की है जिहड़ा फोर्थ क्वेश्चन है आपां उस वल वधदे हां, वो की कहंदा हैगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, थोड़ा पानी ले लिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो फिर जे आप फोर्थ पार्ट की गल करिए तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिदा कि अपना कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला उदा ही है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो किहड़े कंसिस्टेंट ने किहड़े इनकंसिस्टेंट ने, ठीक है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो जे तुहानूं ओह पता लगदा है भी वो कंसिस्टेंट ने, ठीक है, तो उन्हां दा जिहड़ा सॉल्यूशन है वो आपां लभणा गा। तो मैनू नहीं लगता भी ये तुहानूं करवाउण दी भी ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जेकर तुसीं पिछलियां वीडियो देखियां ने, पिछले सम कीते ने 3.2 दे फस्ट और सैकेंड पार्ट, देखो मैं जस्ट एक सम तुहानूं करवा दांगा, ठीक है, बाकी तुसीं खुद कर सकते हो। देखो इत्थे तुहाडे कोल की होएगा, जिहड़ा फोर्थ सम है, फोर्थ सम दे विच की होएगा, देखो तुहाडे कोल की है, जिद्दां आपां थर्ड सम दे विच अपने कोले देखो दो केस बनदे सीगे भी, एक तां कंसिस्टेंट बन सकदे सीगे, एक इनकंसिस्टेंट।
देखो कंसिस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। देखो तुहाडे कोले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दित्तियां होणगीਆਂ, ठीक है। तो पहले तो आप पता करांगे भी वो कंसिस्टेंट है इनकनसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ देखो दो चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, एक तो वन सोल्यूशन ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, एक इनफिनाइट मतलब कि बेअंत जिन्होंने आप गिन भी नहीं सकते, ठीक है। उन्ने सोल्यूशन होंगे ने। इनकनसिस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ नो सोल्यूशन, ठीक है। तो हुण देखो भी जेकर तुहाडे कोल कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ वन सोल्यूशन होएगा ਜਾਂ इनफिनाइट सोल्यूशन होणगे, तो आप सोल्यूशन लभ सकते हैं। जे आप सोल्यूशन लभ सकते हैं तो फिर उसनूं ग्राफिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के उपर विखा सकते हैं। बट इनकनसिस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जाके गल मुक ही जाती है भी सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक सम कर भी लेने, देखो तुहानूं थोड़ा समझ आ जाएगा। तो तुसीं इन्हां नूं खुद भी करके देखना अपनी नोटबुक के उपर। हाँ जी देखो जिदा कि अपने फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम की कहना है फोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है ये कहते एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हाँ जी पहले तो आप उसनों की है इसनों कंपेयर करांगे, 1/2 हो जाएगा ये, तो सैकेंड भी अपने को 1/2 हो जाएगा, थर्ड भी अपने को की हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी फिर की हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो अपने को की है तीनों बराबर हो गया। तो अपने को किहड़ा केस आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, एक केस बन गया। तो इस केस के अपने को की हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो जे आप सोल्यूशन की गल करिए तो आप कहांगे इनफिनाइट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो आप कह सकते हैं अनेका हल संभव ने। तो जो अनेका हल संभव नहीं फिर आप हल कढ़ सकते हैं ना। तो देखो इतने मेरे को इक्वेशन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो की है फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ नहीं करना, जस्ट आप की है उदा ही जी वैल्यू है वो पुट अप करनी है। तो अपने को आ गया देखो x प्लस बाई इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बन गया। सैकेंड आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो स्टूडेंट्स अपने को की हो जाएगा, देखो उत्थे अपने को की सीगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो उस तो अपने को आएगा 2x इक्वल टू 10, ये 2y उधर जाके मैं हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम मेरे को ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10 माइनस 2y/2। तो हम अपने को की है आप इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लिया, y की वैल्यू आप पुट करांगे तो उहदे नाल अपने को x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इत्थे मैं की है उदों ही डायग्राम्स बनावांगा। हाँ जी ये आप दो डायग्राम्स बना लेने हैं। इत्थे मैं x पुटअप करदा, इत्थे y पुटअप करदा, इत्थे x इत्थे y। तो मैं इत्थे वैल्यू y इक्वल टू, ठीक है, कोई वैल्यू ले लो y की सपोज कर लो आप 1 ले लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। जे मैं y 1 पुट करदा तो x कितनी आ गई 4 आ गई ना। फिर की आ y इक्वल टू हुण मैं कितनी पुट करदा, तो इत्थे मैं लिख लेना वैन y इक्वल टू 1, और इतने मैं लिखूंगा वैन y इक्वल टू 2 भर लो, ठीक है। जे मैं इतने y 2 भरदा तो मेरे को आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 3 आ जाएगी। तो इदा ही सेम प्रोसैस आप की है सैकेंड साइड के उपर करांगे, ठीक है। तो इत्थे मैं भरदा वैन
y इक्वल टू 5 पुटअप कर लो, ठीक है, तो x 0 आ जाएगी। y इक्वल टू 5, ठीक है, y में 5 पुट कर दिया तो x इक्वल टू की आ जाएगी 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 बाय 2, तो x इक्वल टू की आ जाएगी 10 माइनस 10 बाय 2 इक्वल टू 0 बाय 2, इट मीन 0, x 0 आ गई। फिर किया मैं वैन y इक्वल टू किन्नी पुटअप करदा 1 पुट कर दें, ठीक है, 1 पुट कर लेने, 2 पुट कर लेने, जो मर्जी पुट कर लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बाय 2, समझ आ रहा है जी। x इक्वल टू 10 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2 इक्वल टू 3। तो जो मैं y 2 पुटअप की थी तो मेरे को की आ गया x किन्नी आ गया 3 आ गया। हम देखो अपन सोल्यूशन कढ़ लिया तो हम अपने को की है ये वैल्यूज आ गई ने, तो इन्होंने वैल्यूज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ग्राफ ਦੇ ਉੱਪਰ रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी ਨੂੰ ਤਾਂ बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ਹੁਣ ਕੀ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, मतलब कि देखो ये तो इनफाइट पॉसिबल सोल्यूशन सीगे, मतलब कि अनेक हल सीगे, तो कोई ना कोई तो कढ़ सकते हैं आप है ना। जे तो को जस्ट वन सोल्यूशन आता है, ठीक है, तो फिर भी आप डेफिनेटली है जो हल है वो कढ़ सकते हैं। बट जे तो को इनकनसिस्टेंट आती है फिर तो पॉसिबल ही नहीं, फिर जो समय वो इत्थे ही रुक जाना गा। तो तुम लिख दोगे तो आप कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अपने को केस की बनेगा, देखो पहले वो केस बनेगा A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। जो ये केस बन गया, ठीक है, तो आप कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सो नो सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सो इस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ फोर्थ सम है इसਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 5th 6th ਐਂਡ 7th ਸਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। Okay, thanks for watching.